السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اس کہانی کے آغاز میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو دو دلوں کو ایک گھر میں لا کر بھی ایک دوسرے سے دور رکھتا ہے۔ ایک وعدہ، ایک قرض اور ایک ایسی شرط جس نے خوشیوں کے دروازے پر خاموشی کی زنجیر ڈال دی۔ دیکھیے سچائی، صبر اور عقل کس طرح تقدیر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک شہر فرید آباد میں ایک زمانے میں ایک نہایت غریب برہمن رہتا تھا۔ اتفاق سے اس کا نام دیال داس ہی تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سجن تھا۔ سجن اپنے نام کی طرح نرم دل، سچا اور ایماندار نوجوان تھا۔ وہ ہر کام میں سچائی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا اور کسی کا حق مارنا تو دور کی بات، وہ کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دیال داس کے پاس ایک چھوٹا سا دیہاتی طرز کا گھر تھا، مگر وہ بھی خستہ حال تھا۔ اس گھر میں نہ تو کھڑکیاں تھیں اور نہ ہی زمین پر کوئی ڈھنگ کا فرش تھا۔ دیواروں کی مٹی کئی جگہ سے جھڑ چکی تھی اور چھت کے بانس بھی وقت کے ساتھ کمزور ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے خاص طور پر برسات کے دنوں میں انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب بارش ہوتی تو گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک برتن رکھنا پڑتے تاکہ چھت سے ٹپکنے والا پانی فرش پر جمع نہ ہو۔ لوگ مذاق میں کہا کرتے تھے، اگر بارش 1 گھنٹہ برسے تو اس گھر کی چھت سے کئی گھنٹے پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ مگر دیال داس کبھی ان باتوں کا برا نہ مناتا۔ وہ مسکرا کر کہہ دیتا، غریب آدمی کی چھت بھی اسی کی طرح صبر کرنا جانتی ہے، بیچاری دیر تک روتی رہتی ہے۔ دیال داس تھوڑا بہت علم نجوم بھی جانتا تھا۔ فرید آباد اور آس پاس کے دیہات کے لوگ اکثر اس کے پاس آتے اور اپنی قسمت کے بارے میں پوچھتے۔ کوئی اس سے اچھا وقت معلوم کرواتا اور کوئی اپنے کام کے لیے مبارک گھڑی پوچھتا، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کا دن پوچھتا تو کوئی نئی دکان کھولنے کے لیے اچھے وقت کا پوچھتا۔ دیال داس اپنی اسی سمجھ کے مطابق سب کو جواب دیتا، مگر ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھتا کہ کسی کے دل میں جھوٹی امید نہ ڈالے۔ لوگ کبھی کچھ رقم، کبھی پھل اور کبھی مٹھائیاں اس کے سامنے بطور نذرانہ رکھ دیتے۔ دیال داس خوشی سے وہ سب قبول کر لیتا تھا، چاہے وہ چیز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کی چھوٹی سی محفل آباد رہتی تھی اور دوسرا وہ ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، تھوڑی چیز میں بھی برکت ہو تو وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے اور بہت کچھ بے برکت ہو تو ہاتھ خالی ہی رہتے ہیں۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر اس کے بیٹے سجن کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہاں روزمرہ کی چند چیزیں، کچھ اناج، کچھ تیل، کچھ دیسی صابن، کچھ رسیاں اور گاؤں کے کام آنے والا تھوڑا بہت سامان رکھا رہتا تھا۔ سجن قناعت اور سادگی کا سبق ہمیشہ یاد رکھتا تھا، اس لیے وہ اپنے حال میں مطمئن رہتا اور ہمیشہ یہ دعا کرتا، اے پرماتما، مجھے اتنا دے دیا کرو جو میرے گھر کا گزارا ہو جائے، اور اگر دروازے پر کوئی سادھو آ جائے تو اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجوں، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہی قناعت کا درس جس پر باپ بیٹا دونوں عمل کرتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ غربت تھی، تنگی تھی، مگر دل میں حلال کی کمائی کا سکون بھی تھا۔ کھانا سادہ ہوتا، کپڑے معمولی ہوتے، مگر نیت صاف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ عام لوگ اور خاص طور پر برہمن برادری میں دیال داس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر خوشی اور غم میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتا اور کبھی کسی کو غلط راستہ نہیں دکھاتا۔ اگر کسی کی گھر بیماری ہو جاتی تو وہ حال پوچھنے ضرور جاتا، اگر کسی کے گھر خوشی ہوتی تو وہ دعا دینے پہنچ جاتا۔ اس کی زبان نرم تھی اور نیت سچی۔ جب اس کا بیٹا سجن جوانی کی عمر میں داخل ہوا تو دیال داس کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں ایک ایسی بہو آئے جو اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں برکت لے آئے۔ اس نے اپنے جاننے والوں اور دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی اچھی، شریف اور گھر کے کاموں میں ماہر لڑکی ملے تو اسے ضرور بتائیں۔ لیکن 6 مہینے گزر گئے اور کوئی مناسب رشتہ نہ ملا۔ کہتے ہیں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور خدا کو اپنے بندوں کے کاموں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک دن خواجہ سرائے کی طرف سے ایک شخص پنڈت شیام لال اپنی بیٹی گوری کا رشتہ لے کر آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی بہت تعریف کی۔ وہ کہنے لگا، اس کی بیٹی نہایت سلیقہ مند، نیک اور گھر کے کاموں میں ماہر ہے، روٹی بھی اچھی بناتی ہے، سلائی بھی جانتی ہے اور بڑوں کی خدمت بھی دل سے کرتی ہے۔ یہ سب وہی خوبیاں تھیں
जो दयाल दास अपनी बहू में चाहता था। उसका दिल तो चाहता था कि फौरन हाँ कर दे, मगर अपने घर की हालत और माली तंगी देखकर वो रुक गया। वो साफ गो इंसान था। उसने सीधी बात करते हुए श्यामलाल से कहा, पंडित जी, रिश्ते की तजवीज़ का बहुत शुक्रिया, मगर मैं सच छुपाना नहीं चाहता। मेरे माली हालात बहुत कमज़ोर हैं। इस वक्त शादी के खर्चात उठाने के काबिल नहीं। बेहतर होगा हम इस बारे में 1 साल के बाद बात करें। श्यामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप तो बिला वजह फिक्र कर रहे हैं। मैं आपकी हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर आप चाहें तो शादी 1 साल बाद सादगी से कर लेते हैं। फिर इसने कहा, मेरी 4 बेटियां और भी हैं और गौरी सबसे बड़ी है। अगर इसकी शादी हो जाएगी तो बाकी बेटियों की फिक्र आसान हो जाएगी। मैं दौलत नहीं इंसान देखता हूँ, और आपका घर भले छोटा हो मगर इज्जत वाला है। दयाल दास के लिए ये बात किसी खुशखबरी से कम न थी। इसने फौरन हाँ कर दी। इस वक्त 1 रुपए की रस्म मंगनी अदा की गई, जो उस जमाने में बड़ी अहमियत रखती थी। थोड़ा सा गुड़ भी बांटा गया और यूं मंगनी की रस्म अदा हो गई। शादी की तारीख 1 साल बाद मुकर्रर कर दी गई। उस दिन दयाल दास की आंखों में खुशी के आंसू भी आए और फिक्र की हल्की सी लहर भी। जब शादी में सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए तो दयाल दास को फिक्र होने लगी, क्योंकि उसके माली हालात में अब तक कोई खास बेहतरी नहीं आई थी। इसने सोचा कि बिरादरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ रकम का इंतजाम करना जरूरी है। वो सादगी चाहता था, मगर इतनी भी नहीं कि लड़की वालों को शर्मिंदगी हो और अपने घर की बेबसी खुलकर सामने आ जाए। चुनाचा वो अपने दोस्तों और जानने वालों के पास मदद के लिए जाने लगा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, भाई, हमारे अपने हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। किसी ने बहाना बनाया, किसी ने वक्त टाल दिया, किसी ने हमदर्दी दिखाई, मगर हाथ ना बढ़ाया। दयाल दास हर दरवाजे से कुछ टूटा हुआ सा वापस आता, मगर फिर भी अगले दिन हिम्मत करके किसी और के पास चला जाता। आखिरकार मायूस होकर इसने सूदखोरों और साहूकारों के चक्कर लगाने शुरू किए। हर साहूकार ने यही शर्त रखी कि हम तुम्हें कर्ज तो दे देंगे, मगर इसके बदले तुम्हें अपना घर गिरवी रखना होगा। मगर दयाल दास के लिए अपना घर गिरवी रखना मुमकिन नहीं था। वो सोचता, अगर यही छत भी हाथ से गई तो फिर मेरे बेटे और आने वाली बहू के सर पर साया कहाँ रहेगा। आखिरकार वो अपने पुराने दोस्त धनराज के पास सोना गांव गया। धनराज इसकी ईमानदारी और शराफत से अच्छी तरह वाकिफ था। इसने मुस्कुरा कर कहा, पंडित जी, 1000 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 10,000 भी मांगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर कर्ज की वापसी की कोई जमानत तो होनी चाहिए। दुनिया भरोसे पर चलती है, मगर लिखत पढ़त भी जरूरी होती है। दयाल दास कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने कहा, मेरे पास जमानत के तौर पर देने के लिए तो कुछ नहीं, मगर एक बात का वादा करता हूँ, जब तक मेरा बेटा तुम्हारी एक एक पाई वापस नहीं कर देता, वो अपनी बीवी के साथ मियाँ बीवी के तौर पर नहीं बल्कि भाई बहन की तरह जिंदगी गुजारेगा। धनराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे ये शर्त अजीब तो लगी, मगर दयाल दास के लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि वो खामोश हो गया। धनराज को इसकी बात पर पूरा यकीन था। इसने फौरन अपनी तिजोरी से 1000 रुपये निकाल कर उसके सामने रख दिए और एक तहरीरी मुआहिदा भी लिख दिया। इस मुआहिदे में यही शर्त रखी गई कि जब तक कर्ज अदा ना हो, लड़का और लड़की बहन भाई की तरह रहेंगे। दोनों ने इस मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। धनराज ने कागज तय करके अलग रख दिया और दयाल दास ने रुपए अपने कपड़े के थैले में डाल लिए। दयाल दास ने उनमें से 500 रुपये अपने थैले में रख लिए और बाकी 500 रुपये धनराज के पास बतौर अमानत छोड़ दिए। दयाल दास कहने लगा, घर में रकम महफूज रखना मुश्किल है, इसलिए बाकी रकम तुम्हारे पास ही रहने दो, जब जरूरत होगी तो ले लूंगा। ये कहकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मगर बदकिस्मती से रास्ते में उसे शदीद पेट में दर्द शुरू हो गया। वो पसीने में भीग गया और बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। इसने आते ही वो रकम अपनी लकड़ी के संदूक में रखकर ताला लगा दिया, मगर अपने बेटे को इस बारे में बताना भूल गया। उसकी हालत बिगड़ती गई। सज्जन ने फौरन हकीमों को बुलाया, मगर हर दवा बेअसर साबित हुई। कोई जोशांदा लाया, कोई फक्की लाया, कोई जड़ी बूटी, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। जैसे किसी शायर ने खूब कहा है कि जब मौत का वक़्त आता है तो हकीम बेबस हो जाता है। अब मौत का वक़्त करीब आ चुका था। दयाल दास अपने बेटे को देखता, कुछ कहना चाहता, मगर कमजोरी इतनी थी
کہ ज़बान उसका साथ न देती। उसके दिल में हसरत रह गई कि काश वो सज्जन को कर्ज और मुआहदे की पूरी बात बता देता। आखिर मौत के फरिश्ते ने अपना काम पूरा कर दिया और दयालदास इस दुनिया से रुखसत हो गया। बड़ा अफसोसनाक मंजर था। बाप अपने बेटे की शादी की हसरत दिल में लिए दुनिया से चला गया। बेचारा सज्जन बाप के गम में डूबा हुआ था। वो इस तरह रो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मोहल्ले और गली के लोग जमा हो गए, कोई ताज़ियत कर रहा था और कोई सब्र की तलकीन। तमाम रसूमात अदा हुई और आखिरकार पगड़ी की रस्म भी आन पहुंची। बिरादरी के लोग जमा हुए। पूजा के बाद सज्जन को तिलक लगाया गया और उसके सर पर बांधने के लिए नई पगड़ी निकाली गई। रस्म व रवाज के मुताबिक बिरादरी के तमाम लोगों ने पगड़ी को हाथ लगाया और फिर उसे सज्जन के हवाले कर दिया। सज्जन खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बुजुर्गों, मेरे बाप की मौत पर आप सब ने जो हमदर्दी दिखाई है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पगड़ी बांधने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पगड़ी की रस्म आखिर क्या माना रखती है और आप सबका इस पगड़ी को हाथ लगाने का क्या मतलब होता है? मजमे में से एक सफेद रीश बुजुर्ग उठे और बोले, बेटा, तुमने अभी दुनिया में कदम ही रखा है। दुनिया की ऊंच नीच तुम क्या जानो? ये हमारी पुरानी रस्में हैं। हमें भी याद नहीं कि ये कब से चली आ रही हैं। बुजुर्गों की बनाई हुई रस्मों पर सवाल नहीं उठाया जाता। जो बिरादरी कहे खामोशी से वो ही कर लो। लेकिन सज्जन इस जवाब से मुतमईन ना हुआ। वो दोबारा खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बुजुर्गों, हर रस्म के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। पगड़ी की रस्म इसलिए की जाती है कि बाप के बाद बेटा उसकी जगह संभालता है और बिरादरी के लोग पगड़ी को हाथ इसलिए लगाते हैं कि वो ये यकीन दिलाते हैं कि मरने वाले के खानदान के साथ हर खुशी और हर गम में शरीक रहेंगे। फिर इसने आहिस्ता आवाज में कहा, अब मेरा आप लोगों को एक सादा सा सवाल है। आप में से कौन है जो मेरे साथ खड़ा होने का वादा करता है? ये सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। कोई एक शख्स भी आगे ना बढ़ा। सज्जन ने दोबारा कहा, अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी बिरादरी में से एक भी शख्स मेरा सहारा बनने को तैयार नहीं। मेरा बाप मर गया है और मैं तन्हा रह गया हूँ। मैंने आप सबकी हमदर्दी देख ली। फिर इसने पगड़ी की तरफ देखकर कहा, ऐसी बिरादरी पर मुझे कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये पगड़ी संदूक में रख दीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला सबका मालिक है। ये कहकर इसने बिरादरी को सलाम किया और वहां से चला गया। लोग इसकी बातों से नाराज हो गए। कुछ देर सरगोशियां करते रहे और फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। मगर सज्जन के दिल पर उस दिन एक बात और भी साबित हो गई कि इंसान को रस्मों से ज्यादा अपने बाजुओं, अपने रब और अपनी नीयत पर भरोसा करना चाहिए। चंद दिन बाद सज्जन ने घर का सामान ठीक करना शुरू किया। अचानक इसकी नजर अपने बाप के लकड़ी के संदूक पर पड़ी। जब इसने संदूक खोला तो अंदर 500 रुपए रखे हुए थे। वो हैरान रह गया। उसे अपनी बाप की आदत अच्छी तरह मालूम थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और बिला वजह रकम छुपाकर भी नहीं रखते थे। फिर ये रकम कहाँ से आई? उसने सोचा, शायद मेरी शादी के लिए कहीं से कर्ज लिया होगा। चुनाचा वो अपने बाप के तमाम जानने वालों के पास गया और पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम न था। आखिर उसे सोना गांव के सेठ धनराज का ख्याल आया। वो फौरन वहां पहुंच गया। उसने अपने बाप की वफादारी का जिक्र भी किया और रकम के बारे में भी पूछा। धनराज ने अफसोस का इजहार किया और बोला, तुम्हारे वालिद चंद दिन पहले यहाँ आए थे। वो मुझसे 500 रुपये ले गए थे और 500 रुपये अभी भी मेरे पास अमानत रखे हुए हैं। जब चाहो ले सकते हो। ये सुनकर सज्जन ने कहा, चचा जी, आपको मालूम है कि मेरे वालिद ने मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी। बराए करम बाकी रकम भी अभी मुझे दे दीजिए। धनराज चालाक आदमी था। इसने फौरन बाकी 500 रुपये निकाल कर उसके सामने रख दिए और साथ ही वो तहरीरी मुआहिदा भी रख दिया जिस पर इसके वालिद दयालदास के दस्तखत मौजूद थे। सज्जन ने जब वो मुआहिदा पढ़ा तो हैरान रह गया। उसमें लिखा था, जब तक कर्ज वापस ना किया जाए लड़का और लड़की मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई की तरह रहेंगे। ये पढ़कर सज्जन परेशान हो गया और बोला, अगर मैं शर्त को मान लूं तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? अगर बीवी के साथ भाई बहन की तरह रहना है तो शादी करने का क्या फायदा? ये कहकर वो उठकर चला गया। मगर रास्ते में वो परेशान था। आखिर इसने सोचा, शादी की तारीख करीब है। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लड़की वालों की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। बेहतर यही है कि कर्ज लेकर शादी कर ली जाए।
یہ سوچ کر وہ دوبارہ دھن راج کے پاس گیا اور نرم لہجے میں بولا، چچا جی آپ ہی میرے بزرگ ہیں، برائے کرم مجھے صحیح راستہ بتائیں۔ دھن راج کہنے لگا، بیٹا اس معاہدے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم جلد سے جلد قرض کی رقم واپس کرنے کی کوشش کرو، میں تمہارے خلاف کبھی عدالت نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سجن کو کچھ تسلی ہوئی اور اس نے بھی معاہدے پر دستخط کر دیے اور رقم لے کر گھر واپس آ گیا۔ اب اس کے پاس پیسے تھے، اس نے فوراً شادی کی تیاری شروع کر دی۔ بڑائی کو میز اور کرسیاں بنانے کا حکم دیا، حلوائی کو مٹھائیاں اور کھانے تیار کرنے کے لیے کہا، کپڑے اور زیورات بنوائے اور دعوت نامے بھی تقسیم کر دیے، مگر ہر جگہ سادگی اور کفایت کا خاص خیال رکھا گیا۔ جہاں 2 چیزیں کافی تھی وہاں 4 نہ خریدیں، جہاں سادہ کپڑا خوبصورت لگ رہا تھا وہاں فضول دکھاوا نہ کیا۔ آخر شادی کا دن آن پہنچا، بارات خواجہ سرائے پہنچی اور رسم و رواج کے مطابق شادی کی تمام رسومات ادا ہو گئیں۔ گوری سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی اور اس کے گھر والے دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کی نئی زندگی میں آسانی دے۔ سجن اپنی دلہن گوری کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ سیٹھ دھن راج بھی شادی میں شریک تھا اور تمام انتظامات دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان واپس چلے گئے۔ اب گھر میں صرف سجن اور اس کی بیوی گوری رہ گئے۔ گوری نے طرح طرح کے لذیذ کھانے بنائے اور تھالیاں سجا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیں۔ سجن مزے لے کر کھانا کھانے لگا۔ چٹخاروں کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی شخص برسوں بعد سکون سے کھانا کھا رہا ہو، وہ جیسے صدیوں کا بھوکا ہو، مگر اس کے چہرے پر گہرے غم اور مایوسی کے آثار بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ لڑکی نے لمبا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کی ہر حرکت خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ رات ہوئی تو سجن اپنی بیوی سے کہنے لگا، پیاری گوری تم نے آج بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، میں تو کھاتا ہی چلا گیا، شاید تم نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ اب میں دکان پر جا رہا ہوں اور آج رات وہیں سو جاؤں گا۔ اس علاقے میں اکثر چوری کی وارداتیں ہو جاتی ہیں جہاں میری دکان ہے، اس لیے دکان کی حفاظت ضروری ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاس ہے ہی کیا، تم اندر سے کنڈی لگا لینا اور آرام سے سو جانا، میں سویرے واپس آ جاؤں گا۔ حقیقت یہ تھی کہ سجن کی آنکھوں کے سامنے وہ تحریری شرط گھوم رہی تھی جس پر اس نے دستخط کیے تھے کہ قرض ادا ہونے تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھائی بہن کی طرح رہے گا، مگر بہانہ دکان کی حفاظت کا بنا لیا تھا۔ بیچاری بیوی شرم کے مارے کچھ نہ بول سکی اور خاموش کھڑی رہی۔ جب تک اس کا شوہر نظر آتا رہا وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ دلہن ایک عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی جس کا اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات اس نے تارے گن گن کر کاٹی، طرح طرح کے خیال اس کے ذہن میں آتے رہے۔ کبھی سوچتی شاید برات کی خاطر تواضع ٹھیک نہ ہوئی ہو، کبھی اسے خیال آتا شاید جہیز پسند نہ آیا ہو، پھر سوچتی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے اسے خبر ضرور مل جاتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میرا شوہر مجھے پہلی رات ہی چھوڑ کر چلا گیا اور کہتا ہے کہ دکان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ سوچ سوچ کر وہ بہت اداس ہوئی اور آخر اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا شاید پچھلے جنم میں مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تھا جس کی سزا اب مل رہی ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میرے والدین ایسی شادی کرنے کے بجائے مجھے کسی کنویں میں دھکیل دیتے۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو سمجھاتی، نہیں میرا شوہر برا نہیں لگتا، اس کے دل میں ضرور کوئی درد ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ ادھر سجن بھی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو دکان پر جا کر سونا اور صبح گھر آ جانا اس کے روز کا معمول بن گیا۔ اس کی بیوی گوری کو جتنا وقت ملتا بیچاری گھر کی صفائی بھی لگی رہتی، چیزوں کو ترتیب سے رکھتی اور اپنے شوہر کے لیے وقت پر ناشتہ اور کھانا تیار کرتی۔ اس نے گھر کو آئینے کی طرح چمکا دیا تھا، دیواروں کے ٹوٹے پن میں بھی صفائی کی چمک نظر آنے لگی تھی۔ برتن اپنی جگہ، کپڑے اپنی جگہ، اناج اپنی جگہ۔ گھر چھوٹا تھا مگر سنبھلا ہوا لگنے لگا تھا۔ سجن یہ سب دیکھ کر خوش تو ہوتا تھا مگر گوری کی حالت جدائی کی لمبی راتوں کی وجہ سے کمزور ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں ہر وقت ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا تھا کہ آج ضرور اپنے شوہر سے پوچھوں گی کہ آخر اس قدر بے رخی اور دوری کی وجہ کیا ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ ہندوستانی عورت شرم کی مورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوال کو دل میں دبا کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن اس نے دل مضبوط کیا
और शर्म व हया एक तरफ रख कर फैसला कर लिया कि आज वो अपने शौहर से पूछ कर ही रहेगी। किसी ने सच कहा कि औरत कभी शबनम होती है और कभी शोला। आज तक वो शबनम बनी रही मगर अब शोला बनने के लिए तैयार थी। जब सज्जन हस्बे मामूल दुकान जाने के लिए तैयार हुआ तो गौरी ने उसका दामन पकड़ लिया। सज्जन सुबह ही समझ गया था कि आज इसकी बीवी के तेवर बदले हुए हैं और कोई तूफान आने वाला है, मगर वो कर भी क्या सकता था। खामोशी से खड़ा हो गया और होने वाली बात का इंतजार करने लगा। गौरी ने अपने गले शिकवे यूं शुरू किए, मेरे सरताज, आप मुझे शादी करके घर लाए हैं या कहीं से अगवा करके तो नहीं लाए? मेरे भी कुछ हकूक हैं। आपने मुझे कैदी बनाकर रख दिया है। मुझे कहने में जरा भी शर्म नहीं कि कैदियों के साथ शायद मुझसे बेहतर सलूक होता होगा। कम से कम उन्हें अपनी सलाह का मौका तो दिया जाता है। आप मेरी कोई खामी बताएं, मेरी कोई कमजोरी बताएं ताकि मैं उसे दुरुस्त कर सकूं। शादी के वक्त आपने वादा किया था कि मुझे हमेशा खुश रखेंगे और मेरी हर तरह खबरगिरी करेंगे। कहाँ गए वो वादे? क्या वो सिर्फ बातें थी? मैं तो अपना फर्ज पूरी तरह निभा रही हूँ। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी जिंदगी का हक अदा कर रहे हैं? जरा गौर से सुने, आपका ये टूटा फूटा घर भी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। आपकी दी हुई पुरानी चारपाई भी मेरे लिए फूलों की सेज है, मगर आपकी मौजूदगी तो जरूरी है ना। आपको तो सिर्फ खाने के लिए घर आने की फुर्सत मिलती है और मैं हर वक्त आपके नाम की माला जपती रहती हूँ। हर रात जुदाई की आग में जलती हूँ और रोते रोते रात गुजार देती हूँ। क्या इसी को शादी कहते हैं? घर बसाने के लिए समझ और साथ दोनों जरूरी होते हैं। औरत मर्द की दोस्त और जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होती है। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं जिनमें बराबरी हम आंगी जरूरी है। अगर आप मुझे कबूल नहीं करते तो ना करें, मगर मैं फिर भी आपको अपने लिए देवता समझती रहूंगी। आप सूरज हैं और मैं एक छोटा सा जर्रा। आप एक मजबूत दरख्त हैं और मैं एक बेल जिसे दरख्त के सहारे की जरूरत होती है। अगर सहारा ना मिले तो बेल सूख जाती है। मैं इतने दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ मगर अब नहीं कर सकती। आपने मेरी दिल की आरज़ुओं को कुचल दिया है। मेरी हालत उस शख्स की तरह है जो दरिया के किनारे रहकर भी प्यासा रहता है। अगर आप मुझे इस तरह नहीं रखना चाहते तो साफ कह दें, मगर इस तरह तड़पा तड़पा कर ना मारें। अगर आपको यही मंजूर है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दें। मैं उसे भी अमृत समझकर पी लूंगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। कल जब आप दुकान से वापस आएंगे तो शायद मुझे मुर्दा पाएं। गौरी के बाल बिखरे हुए थे और वो रो भी रही थी। रोना औरत का आखिरी हथियार होता है। बेचारे सज्जन की हालत काबिले रहम हो गई थी। वो समझ रहा था कि गौरी की बातों में काफी सच्चाई है। उसका दिल पसीज गया। उसे ख्याल आया कि अगर गौरी ने वाकई खुदकुशी कर ली तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। इसने सोचा कि अब वो राज जो आज तक छुपा रखा था इसे बता देना चाहिए। इसने गौरी को अपने पास बिठाया और नरम लहजे में कहा, मेरी प्यारी गौरी, तुमने जो कुछ कहा वो सब दुरुस्त है। तुमने घर को संभालने और मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं कि शादी के बाद मेरे भी कुछ फराइज हैं। अगर तुम पहले नरम अंदाज में यही बात कह देती तो बहुत बेहतर था, मगर खैर, आज तुम्हारे इसरार पर मैं तुम्हें अपना एक राज बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। सुनो, मेरे बाप ने हमारी शादी के अखराजात के लिए कहीं से 1000 रुपये कर्ज लिए थे और जिससे कर्ज लिया था उस साहूकार के साथ जो मुआहदा लिखा गया था उसमें एक अजीब शर्त थी, बहुत सख्त शर्त। उसमें लिखा था कि जब तक पूरा कर्ज अदा ना हो जाए हम दोनों मियाँ बीवी नहीं बल्कि भाई बहन की तरह रहेंगे। मेरा बाप हमारे लिए कर्ज छोड़ गए, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर उन्होंने कर्ज लेते वक्त अपने बेटे की भलाई को ही सामने रखा था। अगर उनकी अचानक मौत ना होती तो शायद आज तक ये कर्ज अदा भी हो चुका होता। मैंने तुम्हें पूरी बात बता दी है, अब तुम खुद सोचो। अगर मैं अपने बाप की लाज और अपने नाम की इज्जत का ख्याल रखते हुए दुकान पर जाकर सोता रहा तो क्या मैंने कोई गुनाह किया? मेरा दिल भी दूसरे इंसानों की तरह है। मैंने भी अपने आप पर बहुत ज़ब्त किया है। ये सुनकर गौरी एकदम सहम गई। उसका लहजा अचानक नरम हो गया। वो फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मेरे सरताज, मैं आपकी सच्ची दोस्त हूँ। आप इसी तरह दुकान पर जाया करें। खुदा सब मुश्किलें आसान करने वाला है। इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा।
आप भी सोचें और मैं भी सोचती हूँ, शायद हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने फौरन अपने दुपट्टे से उन्हें पूंछ लिया। सज्जन खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा, फिर उदास दिल के साथ दुकान की तरफ चला गया। मगर उस रात दोनों की सोच बदल चुकी थी। अब उनके दरमियान सिर्फ दुख नहीं था, एक भरोसा भी था। राज खुल जाने के बाद दूरी अगरचा बाकी थी, मगर दिल करीब आ गए थे। अगली सुबह जब सज्जन घर वापस आया तो उसे कर्ज अदा करने का कोई मुनासिब तरीका समझ ना आया। मगर गौरी ज्यादा समझदार निकली। इसने पहले ही एक मंसूबा सोच लिया था। वो बोली, मेरी एक तजवीज़ सुने। आप उसी सेठ धनराज के पास जाएं और उससे मजीद 1000 रुपये कर्ज ले आएं। उसे कह देना कि अब हम एक अच्छा सा कारोबार शुरू करेंगे और जल्द ही सारा कर्ज अदा कर देंगे। हमने खुशहाल जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया है और अब उसके लिए मदद चाहते हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोली, मेरी तजवीज़ मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। मेहनत और अकल से हमारी गुर्बत ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। बाकी बात मैं आपको उस वक्त बताऊंगी जब आप रकम ले आएंगे। सज्जन पर अपनी बीवी की अक्लमंदी का पूरा असर हो चुका था। वो सोचने लगा कि गौरी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। अगले ही दिन वो सेठ धनराज के पास पहुंच गया और उसे सारी बात बता दी। धनराज ने देखा कि लड़का वाकई वादे का पक्का है और कर्ज उतारने की कोशिश भी कर रहा है, इसलिए इसने मजीद 1000 रुपये दे दिए और पुराने मुआहदे पर दोबारा दस्तखत भी करवा लिए। सज्जन खुशी खुशी घर वापस आया और रुपए अपनी बीवी के सामने रखकर बेताबी से उसका मंसूबा पूछने लगा। गौरी के चेहरे पर आज खुशी थी। वो सुकून से बोली, मेरे सरताज सुने, आज से आपका नाम बड़ा भैया होगा और मेरा नाम छोटा भैया। हम एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकारेंगे। अब आप आला नस्ल के 2 घोड़े खरीदें। उनका साजो सामान भी शाही होना चाहिए, जैसा कि शहजादों के पास होता है। 2 मर्दाना शाही लिबास भी बनवाएं और घोड़ों के लिए 1 महीने का चारा जमा करें। 1 टीन देसी घी भी उनकी खुराक में शामिल होगा। ये सब काम जल्दी करें, मगर खर्च बहुत समझदारी से करें। जो रकम बच जाए वो मेरे हवाले कर दें। सज्जन अपने एक पुराने जानने वाले के पास गया, जो बलमगढ़ के शाही अस्तबल में घोड़ों की देखभाल किया करता था। उसकी मदद से कुछ ही दिनों में घोड़े और सारा सामान खरीद लिया गया। सज्जन और गौरी दोनों ने मिलकर घोड़ों की खिदमत शुरू कर दी। उनके दाने में मुनासिब मिकदार में घी भी मिलाया जाता और दोनों रोजाना सुबह शाम 2-2 घंटे घुड़सवारी की मशक करते। शुरू में सज्जन को ये सब कुछ अजीब लगा, मगर गौरी का एतमाद ऐसा था कि वो सवाल किए बगैर काम करता चला गया। गौरी अक्सर घोड़ों की पीठ पर हाथ फेरती, उन्हें प्यार से सहलाती। घोड़े भी इन दोनों से घुल मिल गए और वो अपने मालकों को पहचानने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भैया और छोटा भैया दोनों माहिर घुड़सवार बन गए। एक दिन छोटा भैया बोला, देखो साहब, सफर ही कामयाबी का वसीला बनता है। मेरा दिल कहता है कि जो सफर हम कल शुरू करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा और उसी से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, कभी कभार आते हैं और इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। गौरी अपने दिल में पहले के सख्त अल्फाज पर शर्मिंदा भी थी, मगर अब दोनों का ध्यान मुस्तकबिल पर था। अगले रोज सुबह सवेरे बड़ा भैया और छोटा भैया मर्दाना लिबास पहनकर अस्तबल गए, घोड़ों पर ज़ैन कसी और खुदा का नाम लेकर सफर पर निकल पड़े। उनके सामने कोई खास रास्ता और ना कोई मंजिल थी। जिधर घोड़ों ने रुख किया वो उसी तरफ चल पड़े। घोड़े तेज रफ्तार थे और अपने मालकों के इशारों को खूब समझते थे। उन्हें कभी कोड़ा मारने की जरूरत ना पड़ती थी। थोड़ी देर में वो एक बड़ी सड़क पर जा पहुंचे। इत्तफाक से सामने से रियासत के बादशाह का जुलूस आ रहा था। बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। इसने देखा 2 खूबसूरत नौजवान आला नस्ल के घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। घोड़ों का सीना शेर की तरह चौड़ा और कमर चीते जैसी मजबूत थी। दोनों सवार भी सलीके वाले, सीधे बैठे हुए और खुद एतमादी से भरपूर दिखाई देते थे। बादशाह के दिल में लालच पैदा हुआ। इसने फौरन वजीर को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो ये नौजवान किस रियासत के शहजादे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वजीर उनके पास पहुंचा और तारुफ के बाद सवाल किए। बड़ा भैया बोला, हम जौहरियों के बेटे हैं। हमारा काम एक रियासत से दूसरी रियासत में जाकर हीरे जवाहरात बेचना है। हम तिजारत के सिलसिले में सफर करते रहते हैं। वजीर ने जाकर बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने दोबारा पूछने को कहा कि इनकी आमदनी क्या है। इस बार छोटा भैया बोला,
ہم میں سے ہر ایک کی آمدنی ماہانہ آمدنی 1000 روپے سے کم نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں اور لالچ پیدا ہوا، کیونکہ وہ دونوں نوجوان اور ان کے گھوڑے اسے بہت پسند آئے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں 1000 روپے ماہوار تنخواہ پر رکھ لیا جائے۔ چنانچہ وزیر انہیں ساتھ لے آیا۔ دونوں نے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور یوں شاہی ملازموں میں شامل ہو گئے۔ چھوٹا بھیا آہستہ سے بولا، دیکھا صاحب، خدا نے ہماری سن لی، ہمت کرنے والوں کی خدا بھی مدد کرتا ہے۔ سجن نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ گوری نے صرف ہمت ہی نہیں دی، راستہ بھی دکھایا ہے۔ اس دن کے بعد جو بھی کام انہیں دیا جاتا وہ پوری دیانت اور محنت سے کرتے۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کی نظر میں ان کی عزت بڑھنے لگی اور وہ اس کے خاص ملازموں میں شمار ہونے لگے۔ وہ وقت کے پابند تھے، گفتگو میں شائستہ تھے اور کام میں چوکسی دکھاتے تھے۔ محل کے دوسرے ملازم بھی ان کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ ان کے لباس سے متاثر تھے، کچھ ان کے گھوڑوں سے اور کچھ ان کے سلیقے سے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ برسات کا موسم شاہی باغ کے قریب خیموں میں گزارا جائے گا۔ رات کو پہرے کی ڈیوٹی بھی مقرر ہو گئی۔ رات 9 بجے سے 12 بجے تک بڑا بھیا اور 12 سے صبح 4 بجے تک چھوٹا بھیا پہرا دیتا۔ دونوں نے یہ ڈیوٹی بھی خوش دلی سے قبول کی، کیونکہ شاہی ملازمت میں ان کی ساکھ مضبوط ہو رہی تھی۔ ایک رات جب 12 بجے بڑا بھیا واپس گیا تو چھوٹا بھیا پہرے پر آ گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اسی گہرے سناٹے میں ایک درخت سے پپیے کی آواز آئی اور اس آواز نے چھوٹے بھیا کے دل پر عجیب اثر کیا اور اس کی نسوانی حس جاگ اٹھی۔ جوانی کا عالم تھا، مگر ازواجی زندگی کی خوشیوں سے وہ محروم تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، پپیا پی پی کیا کرے، پیا بنے ہیں ویر، جا پپیا گھر اپنے، مت کر من کو دلگیر۔ یعنی اے پپیا، تو کیوں آوازیں نکالتا ہے؟ میرا پیا تو میرا بھائی بنا ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر چلا جا اور میرا دل نہ دکھا۔ چھوٹے بھیا کے یہ الفاظ جو اس نے پپیے سے کہے تھے وہ بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئے۔ بادشاہ نے آواز دی، اس وقت پہرے پر کون جوان کھڑا ہے؟ چھوٹے بھیا نے فوراً جواب دیا، مہاراج چھوٹا بھیا ڈیوٹی پر چوکس کھڑا ہے۔ راجا نے پھر پوچھا، یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ چھوٹے بھیا نے کہا، مہاراج بہادر، کوئی خاص آواز نہیں تھی، آپ آرام سے سو جائیں، میں پوری خبرداری رکھے ہوئے ہوں۔ 1-2 گھنٹے اور گزر گئے، پپیے نے پھر وہی آواز نکالی۔ چھوٹے بھیا نے دوبارہ وہی شعر دہرایا۔ اب جب راجا نے پھر پوچھا کہ ڈیوٹی پر کون ہے تو چھوٹا بھیا بولا، مہاراج جی چھوٹا بھیا حاضر ہے۔ راجا کی نیند بار بار خراب ہونے لگی تو وہ کچھ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، آج تک کبھی ایسا نہ ہوا، آج ہی عجیب معاملہ کیا ہے؟ پہلی بار آواز سن کر صرف شک ہوا تھا، مگر اب شک یقین میں بدل گیا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، اس ناکارہ پہرے دار چھوٹے بھیا کو فوراً گرفتار کر لو، کل صبح اسے دربار عام میں پیش کیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور پہرے دار کو مقرر کر دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ اگلے دن چھوٹے بھیا کو رسیوں میں جکڑ کر دربار عام میں پیش کیا گیا۔ اس کی حالت بہت بہتر تھی۔ راجا کو اس کی آواز سے پہلے ہی کچھ نسوانی انداز کا شک ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ بادشاہ نے اسے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ چھوٹا بھیا ہیبت شاہی سے کانپ رہا تھا۔ آخر راجا بولے، اے پہرے دار، سچ سچ بتا، رات کو 2 بار میرے کانوں میں ایک آواز آئی تھی، یہ آواز تیری تھی اور اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے اور کیا جواب دے رہے تھے؟ ہم نے 2 بار تم سے پوچھا بھی تھا مگر تم نے ٹال دیا۔ اگر سچ بتاؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، اگر جھوٹ بولا تو سخت سزا ملے گی۔ چھوٹا بھیا سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، مہاراج سلامت رہیں، میں آپ کا وفادار خادم ہوں اور آپ کے فضل سے فائدہ اٹھاتا رہا ہوں۔ میں سارا راز کھول دینا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے تنہائی درکار ہے۔ راجا نے فوراً حکم دیا کہ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ جب دربار خالی ہو گیا تو چھوٹے بھیا نے آہستہ سے کہا، اے تاجدار عالم، میں کوئی نوجوان نہیں بلکہ ایک عورت ہوں۔ میرا نام گوری ہے اور میرے ساتھی کا نام پنڈت سجن ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ اب میں آپ کو اپنی پوری کہانی سنانا چاہتی ہوں۔
गौरी ने कहना शुरू किया, कुछ अरसे पहले हमारी मंगनी हुई थी। जब शादी की तारीख करीब आई तो मेरे ससुर पंडित दयाल दास, जो फरीदाबाद के रहने वाले थे, सख्त माली तंगी में थे। उन्होंने एक साहूकार से शादी के खर्च के लिए 1000 रुपये कर्ज लिए। साहूकार ने सूद तो नहीं लिया क्योंकि वो मेरे ससुर का पुराना दोस्त था, मगर इसने एक अजीब शर्त लिखवा ली, और शर्त यह थी कि जब तक कर्ज की रकम पूरी अदा ना हो जाए उस वक़्त तक सज्जन और उसकी बीवी गौरी मियाँ बीवी की तरह नहीं बल्कि भाई बहन की तरह रहेंगे। गौरी ने आह भरी और कहा, मेरे ससुर तो मर चुके हैं और हमारे लिए ये अजाब छोड़ गए हैं। हमने बहुत दिन इसी शर्त के मुताबिक गुजारे। बड़ों का लिखा हमारे लिए हुक्म की तरह था और सज्जन को अपने नाम की लाज रखनी थी। हम दोनों ही जानते हैं कि ये दिन हमने किस तरह गुजारे, रोते लड़ते और सब्र करते हुए। ऐसे दिन तो खुदा दुश्मन को भी ना दे। वो आगे बोली, आखिर हमने सोचा कि किसी तरह कर्ज से निजात हासिल की जाए। हमने उसी साहूकार से मजीद कर्ज लिया और ये घोड़े और साजो सामान खरीदा ताकि तिजारत करके कर्ज अदा कर सकें। इसलिए हमने अपने नाम भी बदल लिए। मैंने अपना नाम छोटा भैया और सज्जन ने अपना नाम बड़ा भैया रख लिया, क्योंकि हम अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर नहीं कर सकते थे। हमने घर बार छोड़ दिया और किस्मत के भरोसे निकल पड़े। फिर इसने कहा, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें आपके दर्शन नसीब हुए। लोग कहते हैं कि राजा अपनी रियाया का बाप होता है। आपने मेहरबानी की, हमें अपने खादमों में शामिल कर लिया और हमें वफादारी साबित करने का मौका दिया, वरना हम दर बदर की ठोकरें खाते फिरते। आखिर में गौरी ने सर झुकाकर कहा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। खुदा के नज़दीक वही शख्स बड़ा होता है जो दूसरों की खता माफ़ करे। अगर हमारे अमल में कोई गलती हो गई हो तो उसे हमारी मजबूरी समझकर माफ़ कर दीजिए। ये कहकर इसने ज़मीन को बूसा दिया। राजा ये सब सुनकर हैरान रह गए। उनके दिलों में दोनों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। उन्हें यकीन हो गया कि ये दोनों निहायत ईमानदार और वादे के पक्के हैं। फिर भी राजा ने सच्चाई की तस्दीक के लिए बड़े भैया को भी अलग बुलाकर सारी बात पूछी। दोनों के बयानात एक जैसे थे, इसमें कोई फर्क ना था। ये देखकर राजा ने खजाने के अफसर को बुलाया और हुक्म दिया, हम बड़े भैया और छोटे भैया की दयानतदारी से बहुत खुश हुए। इन्हें इनाम के तौर पर फौरन 2000 रुपये सरकारी खजाने से दिए जाएं ताकि ये अपना कर्ज अदा कर सकें। इसके अलावा हम इनके लिए ताहयात 1000 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर करते हैं, जो हर माह की पहली तारीख को अदा किया जाएगा। सज्जन और गौरी दोनों खुशी से रो पड़े और राजा के कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। खजाने के अफसर ने वो रकम उसी वक्त उन्हें दे दी। दोनों खुशी खुशी दरबार से निकल आए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दरबार के अमीर और वजीर भी उनकी ईमानदारी और राजा की सखावत की तारीफें कर रहे थे। यहाँ से इनकी जिंदगी का वो मोड़ शुरू हुआ जिसने इनके दिलों पर पड़ी हुई बरसों की धूल एक ही दिन में धो दी। सज्जन ने गौरी की तरफ देखा तो पहली बार उसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं, अपनी निजात का रास्ता दिखाई दिया। और गौरी ने जब सज्जन की आंखों में देखा तो उसे वहाँ एक ऐसा एहतराम मिला जो शायद बहुत कम औरतों को नसीब होता है। अब उनके दरमियान सिर्फ एक कर्ज का खात्मा नहीं था, एक इम्तिहान की तकमील भी थी। दोनों ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि एक दिन भी ज़ाया नहीं करेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपने घोड़ों पर सवार होकर सोना गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर इनके दिल जोर जोर से धड़कते रहे। गौरी खामोश थी, मगर इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सज्जन के हाथ में वो थैली थी जिसमें कर्ज की रकम थी, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ रुपए नहीं, अपनी तकदीर उठाए जा रहा हो। सोना गांव पहुंचकर सीधे सेठ धनराज के दरवाजे पर गए। धनराज उस वक्त अपने आंगन में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। इसने जब इन दोनों को देखा तो चौंक गया। उसे यकीन न आया कि इतनी जल्दी वापस आएंगे। सज्जन ने अदब से सलाम किया और थैली उसके सामने रख दी। फिर बोला, चचा जी, आपका सारा कर्ज एक एक पाई समेत हाजिर है। अब मेहरबानी करके वो तहरीरी मुआहिदा हमें वापस दे दीजिए। धनराज ने थैली खोली, रुपए गिने और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हैरत भी थी और किसी हद तक शर्मिंदगी भी। उसने सोचा, जिन लोगों को मैं मजबूर समझता था वो तो मेरे गुमान से कहीं ज्यादा मजबूत निकले। वो अंदर गया और संदूक से वो कागज निकाल लाया
जिसने 2 जिंदगियां एक घर में रहते हुए भी अलग अलग कर रखी थीं। इसने कागज सज्जन को दे दिया। सज्जन ने उसे देखा, फिर गौरी की तरफ देखा। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। वो एक मामूली सा कागज था, मगर इन दोनों के लिए बरसों का दुख, खामोशी, सब्र और कुर्बानी उसमें बंद थी। सज्जन के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। गौरी ने धीरे से कहा, अब इसे खत्म कर दीजिए। सज्जन ने कागज के 2 टुकड़े किए, फिर 4, फिर 8। गौरी ने आगे बढ़कर वो टुकड़े लिए और करीब जलते हुए चिराग के ऊपर रख दिए। कागज के जर्रे लपक कर जल उठे। दोनों खामोश खड़े देखते रहे, यहाँ तक कि वो तहरीर राख बन गई। उस राख के साथ ही जैसे उनकी जुदाई के दिन भी हवा में बिखर गए। सेठ धनराज ये मंजर देखता रहा। इसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मैंने दुनिया में बहुत से लोग देखे हैं, मगर तुम दोनों जैसी वफादारी, सब्र और सच्चाई कम देखी है। मैंने शर्त तो लिखवा ली थी, मगर ये न जानता था कि तुम उसे दिल पर ऐसे लोगे। आज मुझे एहसास हुआ कि सच्ची इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से बनती है। इसने अपनी तरफ से दुआ दी और कहा, तुम दोनों का घर हमेशा आबाद रहे। सज्जन और गौरी वहां से वापस लौटे तो रास्ता वही था, मगर दिल बदल चुके थे। हवा नरम लग रही थी, धूप रोशन लग रही थी और घोड़ों की टापों में भी खुशी सुनाई देती थी। घर पहुंचकर गौरी ने पहली बार इस आंगन को दिल से अपना महसूस किया। सज्जन ने पहली बार शाम को दुकान जाने के बजाय घर के दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर देखा और फिर खामोशी से अंदर आ गया। उस रात घर में कोई शिकायत ना थी, ना कोई पर्दा, ना कोई बहाना। एक तरफ दिया जल रहा था, दूसरी तरफ चूल्हे की हल्की आंच थी और दरमियान में 2 दिल थे जो एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर लफ्ज कम पड़ रहे थे। सज्जन ने धीरे से कहा, गौरी, तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं संभाला, मेरी टूटी हुई हिम्मत भी संभाली है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। गौरी ने सर झुकाकर कहा, और अगर आप अपने वादे पर सच्चे ना होते तो मेरी सारी अकल भी कुछ नहीं कर सकती। वक्त गुजरता गया, राजा की तरफ से वजीफा मिलता रहा। सज्जन ने अपनी दुकान को खूब तरक्की दी। पहले जो दुकान सिर्फ गुजारे का जरिया थी, आहिस्ता आहिस्ता आसपास के कई गांवों की जरूरत बन गई। इसने अनाज के साथ कपड़ा रखना भी शुरू किया, फिर घी, खुश्क मेवा और देहाती जरूरत की दूसरी चीजें भी रखीं। गौरी ने हिसाब किताब संभाल लिया। वो ना सिर्फ समझदार थी, बल्कि दूरअंदेश भी थी। जो रुपया बचता वो उसे संभाल कर रखती। वो फजूल खर्ची से बचती और सज्जन को भी बचाती। चंद सालों में इनका टूटा फूटा घर भी संवर गया। छत दुरुस्त हो गई, दीवारें नई लेप से चमकने लगीं, एक छोटी सी खिड़की भी लग गई और आंगन में तुलसी का चौखटा बन गया। मगर इनके मिजाज में गरूर न आया। जो सादगी गुर्बत में थी, वही सादगी आसूदगी में भी रही। जो भूखा उनके दरवाजे पर आता, खाली हाथ वापस न जाता। जो जरूरतमंद मिलता, उसकी मदद की जाती। खुदा ने उन्हें औलाद भी अता की। उनके बच्चे जब बड़े हुए तो सज्जन और गौरी ने उन्हें दौलत से पहले सच्चाई का सबक दिया। वो कहा करते थे, कर्ज का बोझ आदमी की कमर से पहले उसके दिल को तोड़ता है। इसलिए कभी झूठे सहारों पर जिंदगी मत बनाना, और अगर जिंदगी में मुश्किल आए तो एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। रिश्तेदार और पड़ोसी सब उनकी अहमियत और ईमानदारी की तारीफें करते थे। लोग अपने बच्चों को मिसाल देकर कहते, देखो, घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। गुर्बत आ जाए तो भी सब्र ना छोड़ो। अगर आजमाइश आ जाए तो अकल, वफा और सच्चाई से उसका मुकाबला करो। यूं एक गरीब बाप के अधूरे खौफ से शुरू होने वाली कहानी एक सच्ची बीवी की दानाई, एक ईमानदार शौहर के ज़ब्त और एक मुनसिफ बादशाह की सखावत से ऐसी रोशनी में बदल गई जिसकी चमक दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने इस किस्से से यही सीखा, जो दिल सच्चे हों उनके लिए बंद दरवाजे भी एक दिन खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, सब्र, वफादारी कभी रायगा नहीं जाते। मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ता नहीं, अगर वो हिम्मत, अकल और नेक नीयति से काम ले तो वही मुश्किल उसकी किस्मत बदल देती है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
شکریہ۔